Girish Patel as a name? आई एम फ्रॉम आनंद, वहाँ से अमूल देखा था, बहुत वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बैंक था, बहुत सारे स्टोरीज थे, लेकिन पहला अर्निंग वो अमूल में जब सैलरी आया तो लगा कि आई अचीव समथिंग। और आपको एक आदमी से मिलना चाहिए जिसका नाम जगदीश दवे है, एंड ही इज द भीष्म पितामह ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे प्रॉब्लम है, वन इज प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड इज क्लोजिंग। वो दोनों अगर किसी ने एक्सपर्टाइज कर लिया वो गिव अप वाला उसको आएगा। आपको इंटेंट लिख के जाना चाहिए कि मैं अगर निरंजन, यस लिखा हुआ इंटेंट बहुत पावर रहता है उसमें, और फिर बुलंदी पे ठहरना। Staying there is important. और उसके लिए कुछ करना नहीं, जो कर रहे हो, जो राइट थिंग कर रहे हो उसको रिपीट करना है। वन मोर कॉल, अगेन वन मोर कॉल। क्लास लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ. अब उनका अपॉइंटमेंट लेना, उनकी ऑफिस जाना, उनके घर वो टाइम नहीं दे रहे हैं। वो शताब्दी पे बैठे हैं, 6 घंटा फ्री है, उसकी सीट पे जाके उसके सीट नंबर पे उसका नाम वाला कवर देने में वो आई थिंक हमको टाइम देंगे, एंड वी गॉट ह्यूज सक्सेस। तो 27,000 customers you acquired. आई थिंक 3x नोज मिले होंगे। 27,000 क्लाइंट है, इनटू 3 नोज मिले होंगे। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ गोल है, एंड इट्स टोटली मिसिंग इन दिस कंट्री। उस पर किसी ने बात नहीं की। Good morning, friends. Today is a very special day for me. I am here to introduce a person who has inspired, I can say, who has inspired many salespeople, many human beings. There are thousands of followers who follow Mr. Girish Patel. We have a lot of stories in India who has made it to the top, and a small town voice, like we say, Mahendra Singh Dhoni from Ranchi has made nation proud. And Mr. Girish Patel's story is not lesser than a Mahendra Singh Dhoni story. A small town boy from Anand, a small place in Gujarat. I have immense pleasure to do my first podcast with Mr. Girish Patel. And we have started our journey in 2003. He has started his career in 1991. So he knows A to Z of sales. He has seen from a first sale to the sale today. Before you're coming also, I am sure that he might have sold one and came here. His expertise in making careers of young professionals, housewives, to retired people, mutual fund distributors. You name a person, he has touched their lives, and they are very thankful, and the kind of gratitude these followers show to them because he has made their dreams come true. So let me introduce Mr. Girish Patel. Is a seasoned veteran and innovator in the world of life insurance profession, and is instrumental in defining this space. Is now defining many aspects of growing agency channel as a growth booster in the industry. I suggest anybody who's in the sales should read a book called One More Call. Today, he also addressed the second most beautiful book about retirement. We will get into the more details of it, and Girish Bhai will throw a lot of light on his books, both the books in coming conversation. So, ladies and gentlemen, here I am with Mr. Girish Patel, and with a love, lot of people say Girish Bhai. Welcome, Girish Bhai, to the show, to the podcast show, to the podcast show. Thank you very much. So, आपका नाम तो, your name is very famous in insurance industry. Your name is very famous in the whole sales world. I've attended your meetings. I've seen you grown because we have started your career. We've started career together, but you have reached a pinnacle of position. When I speak to my colleagues, not many people get into that level, and you're from small town. And I just want to know how this journey of sales. It's called Ajarpura. Ajarpura is the name, but people knows because the Amul Dairy का movement वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद our प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, वो एक नाइट अजरपुरा में नाइट स्टे किया था। सो वेरी हिस्टोरिकल विलेज, राइट। सो वहाँ से हमारा वहाँ बर्थ हुआ है, स्कूलिंग वहाँ हुई, देन मूव टू द आनंद। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन अमूल. I think in entire my career I work with the top brands, right? Wow, so I started my career in Amul. I worked 3-4 years in the Amul in a cooperative sector. क्योंकि मेरा second liking था is a cooperative movement.
क्योंकि आई एम फ्रॉम आनंद, वहाँ से अमूल देखा था, बहुत वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बैंक था, बहुत सारे स्टोरीज थे. अगेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक. पर मैं जो जिस टाउन में था ना, उसमें अमूल था और दूसरा डिस्ट्रिक्ट बैंक था, वो भी सबसे बड़ा बैंक था. तो देन अमूल से मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ बैंक में. तो मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया था, मुझे लगा बैंक का एक अच्छा जॉब रहता है, राइट. अरे मुझे लगता था कि आई अचीव समथिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ. आई एम सेकंड इन द यूनिवर्सिटी इन स्टडी, राइट. और उसके बाद लगा कि 2 साल कोर्ट में गए, पॉकेट मनी मिलता था, लेकिन पहला अर्निंग वो अमूल में जब सैलरी आया तो लगा कि आई अचीव समथिंग. फिर बैंक में एक लाइफ लगा कि 9 to 5 इज़ गुड, राइट. सो बैंक जाते थे, लोग रिस्पेक्ट करते थे, राइट, बैंकर का उस जमाने में. आई थिंक शादी भी उसी वजह से हुई होगी, तो बैंक में लग गए. बैंक में लगे थे. तो ऐसा आई थिंक रेफरेंस से कोई आदमी मुझे मिलने आया फ्रॉम LIC एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर. तो उनको लगा कि ये उसने अमूल में काम किया है, वो बैंक में काम कर रहा है, बैंक में भी काफ़ी कस्टमर को फटाफट सर्विस दे रहा है, और उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी अच्छा था मेरा. तो उनको लगा कि लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा करेगा, उनको लगा होगा. वो तो है, हाँ. तो उन्होंने फिर दे अप्रोच मी कि आप LIC का एजेंसी क्यों नहीं लेते. जितने लोग लाइफ इंश्योरेंस में है, आई डोंट थिंक वो बाई चॉइस आए हैं, राइट. वो एक्सीडेंटली आए हैं, ऐसा मुझे लगता है. मैं तो मेजोरिटी लोगों को जानता हूँ, इतने लोगों के साथ काम किया, सब न सब कोई ना कोई वजह से आए हैं, राइट. तो सेम मेरा भी एंट्री ऐसे ही हुआ. तो वन फाइंड देयर इज अ वन मीटिंग इन आनंद. सो जो LIC का DO एजेंट की मीटिंग करते हैं, अच्छा. तो दे फोर्स मी कि भी आप मीटिंग में आइए. सो आप भी रेगुलर एजेंट की तरह पहले मीटिंग में आज जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बोल के? नहीं, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कौन से होटल में है, खाना अच्छा है. तो उस टाइम पे तो ऐसा उन्होंने बोला नहीं, वन ऑफ द टॉप होटल ऑफ आनंद वहाँ हमने रखा है, और आपको एक आदमी से मिलना चाहिए जिसका नाम जगदीश दवे है, एंड ही इज़ द भीष्म पितामह ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री. अब मीटिंग में जो आज हम मीटिंग करते हैं वैसा वही मीटिंग था. पूरा मीटिंग हुआ, मोटिवेशन हुआ, मार्च के महीने के बारे में बात हुआ, और एंड में टारगेट लेते हैं. तो पूछने लगे कि इस महीने में क्या करोगे. तो सब लोग बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि सबसे कम जो बोलेगा वो हम बोलेंगे. अच्छा, आप पहले क्योंकि पिछली लाइन में बैठे थे. तो किसी ने 5 बोला, किसी ने 2 बोला, तो मैंने बोला हमको भी 2 बोलना पड़ेगा. तो देन आई ऐसे मैंने उंगली किया, तो उन्होंने बोला 2 लाख. अब मुझे पता नहीं था कि वो समेश्वर होता है कि प्रीमियम होता है, राइट. तो मैंने ऐसा बोला. तो मैंने बोला सर मैंने ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने करवाया है. अच्छा. तो उन्होंने बोला कि तुम्हें उसकी एक अलग साइड भी, तो तुम्हें क्यों ज्वाइन करना नहीं है. तो मैंने बोला कि मुझे लगता है बिलो डिग्निटी काम है, लोग पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि सराउंडिंग हमने ऐसे लोगों को देखा था, तो एक परसेप्शन बन गया था. एजेंट का जो परसेप्शन है वो आपके दिमाग में भी था. तुम्हें उसकी एक दूसरा पहलू भी देखना चाहिए. तो मैंने बोला वो कैसे. तो उन्होंने बोला यू शुड गो टू द बॉम्बे एंड मीट सम ऑफ द एजेंट्स एंड देन फाइनलाइज कि आपको इसमें मज़ा आएगा कि नहीं आएगा. तो अंधेरी में था. तो 1000 स्क्वायर फीट ऑफिस इन 91 विथ 3-4 स्टाफ. तो मैंने देखा कि ये हम जो लोकली देख रहे हैं गुजरात में और बॉम्बे में जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है, बहुत गैप है. वो तो है. उस टाइम मुझे लगा कि इंडस्ट्री में कुछ है. तो मैंने सोचा क्लाइंट मीटिंग क्या होता है. तो पता है कि हम गेट टुगेदर करते हैं. वो भी ओबेरॉय में फर्स्ट टाइम. ओबेरॉय में था. तो मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया. Which year sir? Which year? Oh, is in 93. 93 in the Oberoi first client meeting. First client meeting I attended. Your experience. I am a guest, right? और मुझे लगा चलो अच्छा है, ओबेरॉय में जाने को मिलेगा. फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था कि चलो देखते तो है क्या हो रहा. आई थिंक आई सॉ ही पे 42,000 बिल्स इन 93 फॉर क्लाइंट डिनर. दे प्रेजेंटेड वन प्लान, राइट. तो मुझे लगा ये तो हम कर सकते हैं, हम लोगों को बुला सकते हैं अच्छे होटल में, खाना खिला सकते हैं, बात कर सकते हैं. आई गो बैक टू द आनंद. सेम नाइट आई विजिटेड द जगदीश दवेज हाउस. और मैंने बोला कि दवे साहब आपने सही बोला था. मैंने बोला कि आई वांट टू लर्न द इंडस्ट्री. तो उन्होंने बोला so that Oberoi meeting has triggered you. Yes, the first time. First trigger of Mr. Girish Patel is the Oberoi. तो दवे साहब को लगा कि ये अभी जल्दी जल्दी एक्साइट होके आया है, सो लेट्स कूल डाउन. मिस्टर जगदीश दवे, अरे मिस्टर चिमन भाई पटेल. Okay. उन्होंने एक दिन मुझे चिमन भाई पटेल के घर पे इंट्रोड्यूस करवाया.
और वो भी इंश्योरेंस के गुरु थे। उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि हम लोग इंश्योरेंस सेल्स में हैं, हम लोग इंश्योरेंस को जीना चाहते हैं। हाँ, धीरे धीरे लाइकिंग बढ़ता गया। सो इन 93 आई एम फर्स्ट टाइम आई बिकेम ए करोड़पति Wow. इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस। बिफोर IRDA। ओह, सो इन आई थिंक गोरेगांव बजाज हॉल था, उसी में एक मीटिंग था जिसमें कुछ फॉरेन प्लेयर आए थे और उन्होंने टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ LIC के उनको इनवाइट किया अच्छा, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट। वाओ, तो 3 दिन का मीटिंग था, बहुत सारी कंपनी आई थी। वो तो उसके बाद अभी इंडिया में आई भी नहीं। हाँ, सपोज कनाडा लाइव थी, साउथ अफ्रीका से थे, मलेशिया से थे, वो लोग तो कभी आए नहीं। और बहुत जितने जिन्होंने LIC में बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, तो ऐसे लोग थे। तब देश उन्होंने प्रेजेंटेशन शुरू किया कि हम लोग अगर इंडिया में आएंगे तो क्या चेंजेस लाएंगे, वाओ, एंड इट्स आई ओपनिंग फॉर अस। 3 दिन का बहुत एकेडमिक वर्कशॉप था। तो पता चला कि प्राइवेट आएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रप्शन होना है। फिर उसके बाद थोड़ा नॉइज स्लो हो गया एंड वन फाइन डे 99 में IRDA बना। 99 years। दवे साहब उन दिनों में कुछ बातें करते थे, उसमें खास बात ये थी कि ये 3 चीज़ नहीं करनी है, अच्छा, राइट। सो वन फाइन डे वी आर ट्रैवलिंग टू आनंद टू जूनागढ़। उनका जूनागढ़ में एक कॉन्फ्रेंस था। रात को 3 साढ़े 3 बजे मुझे याद है, मैं कार ड्राइव कर रहा था, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट लेसन ये साहब उस टाइम पे बोला था कि क्लाइंट फैमिली है। क्लाइंट फैमिली है। जब तक तुम हार्ट टू हार्ट बात नहीं करोगे तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। सुपर। फिर उस दिनों में ट्रस्ट, एजेंटों का ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर हुआ करता था, अभी भी है सर। आज भी है। तो उन्होंने दूसरा बात मुझे बताया कि कभी भी क्लाइंट से कैश लेते हो, हाँ, योर फर्स्ट जॉब टू डिपॉजिट ऑन द काउंटर एज फास्ट एज पॉसिबल। कभी भी कैश लेके घर पे नहीं जाना है। अगर आपको कोई 3 बजे के बाद कैश देता है तो उनको बोलना कल सुबह आके ले जाऊंगा। सेकंड, उन्होंने मुझे बताया था कि आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस और सेल्स, राइट, वहाँ आपको बहुत सारी पार्टीज और बहुत सारा ग्लैमर मिलेगा। अच्छा, सो कैरिड अवे हो सकते हैं आप। व्यसन से दूर रह सकते हो तो रहना। दिस इज सेकंड लिस्ट। नाउ टुडे ऑल gurus, self-help books, everything taught you, change your habits. तो दवे साहब ने उसी दिन बोला कि व्यसन एंड से दी फोर्थ वन इज, उन्होंने बोला था कि यू आर अलाउड टू एंटर इन एनीबडीज फैमिली, और उसके घर में आप किसी भी टाइम जा सकते हो। इज योर कैरेक्टर, योर जॉब इज योर कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर बचा के रखा तो यू आर अनस्टॉपेबल। को सॉल्यूशन बेचना है, आपको इमोशनल कनेक्ट करना है। इमोशनल, एक एक्सेल और IRR का एक लिमिट रहता है, वो तो है। राइट, एंड लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए एक्सेल प्रोडक्ट। सो आई जॉइन And then 2001 2001 you December. joined, yes, okay. So I joined ICC Prudential. First walking guy come to the Ahmedabad office अच्छा, and you- meet कि मुझे ज्वाइन करना है तो किससे मिलना चाहिए। अच्छा, so it is your own walk-in Yes. by your choice। अब उस टाइम पे तो बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि अहमदाबाद में एक ही गुजरात में ऑफिस था। आई यूज टू स्टे इन आनंद। वहाँ तो उस टाइम पे ऐसा था कि जहाँ ब्रांच नहीं है वहाँ पिन कोड नहीं खुलते हैं। कोई क्लाइंट अगर आपने एक्वायर किया है तो आपको उसका मेडिकल कराने अहमदाबाद ले जाना है। 1 साल मैंने हार्डली 9 मंथ एजेंसी किया। उसके बाद कि आपका अभी आप गिरीश पटेल जैसा लोगों को बनाना है, तो पहले आपका सोच क्या था? हाउ डिड यू अप्रोच a job as a unit manager? Because whatever today your success, I mean 3,000 plus agents and 27,000 plus customers, and today while we are talking, your 3,000 agents might be converting a lot of clients today. So that is the first milestone of your career to become a manager, and after that nothing has stopped you. फर्स्ट थिंग तो मैं ऐसा मान नहीं रहा था कि मैं मैनेजर बना हूँ। आई एम सेल्स गाय, I know. राइट। और मुझे उस टाइम पे इतना डायरेक्शनल पता नहीं था, पर मुझे इतना था कि मैंने जो किया है वो मेरे साथ जो लोग जुड़ेंगे उसको सेम करना चाहिए। Correct. आई लर्न फ्रॉम द अबेरॉय मीटिंग। Yeah. सो माई कोर स्ट्रेंथ वॉज द अरेंजिंग ए क्लाइंट मीटिंग। सो मास कैनवासिंग, क्योंकि बल्क बिजनेस के लिए आई कैन ओनली द वे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को बुला के कैनवासिंग करना चाहिए। तो मेरा कोर स्ट्रेंथ था वो। आई थिंक मोर देन 2000 क्लाइंट मीटिंग्स आज तक मैंने किया होगा। कुछ बड़ा करके आगे बढ़ेंगे
सो आई रिक्रूटेड 30 पीपल फर्स्ट बैच, राइट. फिर रिक्रूट करते ही गए. रिक्रूटमेंट मेरा पैशन बन गया. पता नहीं चला कि सेल्स से मैं रिक्रूटमेंट में, लीडरशिप में मेरे को मजा आने लगा. तो उस टाइम पे इन आई रिक्रूटेड मोर देन 2500 एजेंट इन अ कंपनी, राइट. एंड 15 साल सेम डेली एक ही काम था. लोगों को रिक्रूट करो, कस्टमर कॉल करो, लोगों के लाइफ गोल के बारे में सोचो, क्या चीज़ें लोगों को चाहिए, मैनेजमेंट को प्रेजेंट करो कि प्रोडक्ट में ऐसा चाहिए, इसमें ऐसा चाहिए, एजेंट के लिए ऐसा चाहिए, एजेंट का लाइफ कैसे बनना चाहिए, राइट. तो वो चीज़ें सोचते गए, धीरे 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 चीज़ें बनती गई, राइट. स्केल बड़ा हो गया, लेकिन काम वही है सुबह से शाम तक. सेल्स करना है, लोगों के लाइफ गोल को वो अचीव करते वहाँ तक छोड़ना नहीं उनको. सो एक क्लाइंट हो या दी एजेंट्स हो, सो उनकी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उसको बहुत माइक्रो देखना है. स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट रखना है. एक्चुअली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन भी अभी 25 साल हुए हैं हिंदुस्तान में, राइट. एंड हमारे 25 साल भी बचपन जैसा होता है, वहाँ आज भी ऐसा है. मैनी टाइम्स वी सी द क्राइसिस फ्रॉम द रेगुलेटरी साइड, मार्केट साइड, द मैनेजमेंट साइड ऑल्सो. समटाइम मैनेजमेंट ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, राइट. सो एजेंसी द वे बिल्ट होना चाहिए आज भी नहीं हुआ है, राइट. What is that people are missing today? That why sales can't be a career, sir? सो निरंजन, मुझे इसमें ऐसा लगता है कि सेल्स हिंदुस्तान के लोगों में है. एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आई थिंक वर्ल्ड में हमारे पास है, इतना आई थिंक किसी कंट्री में नहीं है. So one of the CEOs used to say जुगाड़. So that's a one part of that. But I think the industry unable to demonstrate the leadership or the I think the growth जो रोल मॉडल होने चाहिए, ऐसे रोल मॉडल बना नहीं पाई इतने सालों में सेल्स में. तो इंडिया में एजेंट्स रोल मॉडल बहुत कम बने हैं, नहीं बने ऐसा नहीं, पर इतने नहीं बने हैं कि दे कैन इन्फ्लुएंस. सेकंड थिंग क्या होता है कि वी आर इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी, राइट, एंड द एनवायरनमेंट. या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो. सो वहीं से एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये है, कभी भी एजुकेशन में वो नहीं आया कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई सिंगल चैप्टर नहीं है, राइट. You were discussing that. So that's one. Correct. Right. Recently we heard the words of skill building and everything, right. Correct. और एंटरप्रेन्योरशिप पर बात होना शुरू भी हुआ है. सो हम लोग आई थिंक जितने हीरोज पैदा करने चाहिए वो नहीं कर पाए. दैट्स अ बिग मिस. सबसे पहले उसे कोई रोल मॉडल चूज करना. तो मेंटर. इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में हम लोग आई थिंक हमारा पूरा हिस्ट्री रहा है फ्रॉम माइथोलॉजी टू टुडे. वी फॉलो द लीडर्स, राइट. Absolutely. सो हमने पहले भगवान को फॉलो किया, फिर राजाओं को फॉलो किया, उसके बाद आज भी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो कर रहे हैं. सो हिंदुस्तान का जो साइकोलॉजी सिस्टम है, हम लोग किसी रोल मॉडल को फॉलो करते हैं. अपने फैमिली बिजनेस में या तो सेल्स में पैसा तभी बनेगा, पैसा जॉब में नहीं बन सकता. एंड इंश्योरेंस में बहुत सालों से बोल रहा हूँ, मेरे कोट भी होंगे कि इंश्योरेंस में जॉब नहीं करना है. इंश्योरेंस में आए हो तो आपको बिजनेस करना है, व्यापार करना है. हर सेल्समैन आज भी फॉलो करना चाहिए आप जो फॉलो करते हैं. पहले तो उसको जो जिस लाइन में वो सेल्स करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना है, इतने फिनेंशियल एडवाइजर बने. अभी बहुत चीज़ें बदल रही हैं. अब लोग भी क्या चाहते हैं, लोग कोई सेल्समैन नहीं चाहते. पीपल डोंट रिकॉग्नाइज द सेल्समैन, राइट. पीपल रिकॉग्नाइज द लाइफ गोल एडवाइजर. करेक्ट. हर क्लाइंट को, क्लाइंट की नीड क्या है, क्लाइंट ये चाहता है कि समवन गाइड मी, माय फैमिली, माय रिलेटिव टिल माय गोल अचीव. मार्क माय वर्ड, अगले 100 साल एडवाइजरी के हैं. तो ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन इमोशन रहेगा. रहेगा. क्योंकि क्या हो रहा है, अभी इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है डिजिटल वर्ल्ड में. लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोगों को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, छोटे. सो चाइल्ड एजुकेशन से लेके, मैरिज से लेके, अपने लोन्स हैं, अपना फाइनेंस है, अपना सेविंग है. एंड द बिग मिस इज द रिटायरमेंट. हिंदुस्तान आज भी रिटायरमेंट पे उसका कोई एजुकेशन सिस्टम इंडिया में है नहीं. उसको वो चीज़ दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ. आई एम इन द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड शेयरिंग नॉलेज. सो उसको पहले कस्टमर की नीड्स क्या है, उसका लाइफ गोल अचीव करने के लिए कौन से व्हीकल वो एडवाइस करेगा, जो व्हीकल वो उसको सजेस्ट कर रहा है
उसका रिस्क क्या है, हाउ ही कैन अचीव, तो वो सारी चीज़ों पे उसको रिसर्च करना पड़ेगा। जब वो इंडस्ट्री में आता है, आने के बाद या तो वो सही रोल मॉडल चूज नहीं कर पाता, सही जो वर्किंग पैटर्न है वो नहीं कर पाता। तो वर्किंग पैटर्न आप बात कर रहे हैं कि डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स, सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे प्रॉब्लम है, वन इज़ प्रोस्पेक्टिंग एंड सेकंड इज़ क्लोजिंग। वो दोनों अगर किसी ने एक्सपर्टाइज कर लिया तो वो गिव अप वाला उसको आएगा नहीं। मेरा जॉब है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्लोजिंग। सिंपल। एंड आउटकम क्या है? आउटकम है मेरे क्लाइंट का लाइफ गोल अचीव होना चाहिए। अब कितना मैं फास्ट करवा सकता हूं वो मेरे विजडम पे रहता है। करेक्ट। आप पूरे उसके सर्कल को विन कर सकते हो। दवे साहब हमको सिखाते थे कि जब आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ मत करो, घर जाओ, अच्छे होटल में फैमिली के साथ खाना खाओ, एक मूवी देखो, सो जाओ। तो आपको वो ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए, उनका भी सेम टाइम है। सही। आपको सक्सेसफुल लोगों को मिलना जाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी का जब अच्छा टाइम चल रहा है ना, उसके पास जाके बात करोगे ना, तो वो कभी भी आपको गिव अप वाला बात नहीं करेगा। या तो आप पास होते हो या फेल होते हो। उतना ही। सेकंड थिंग, बिफोर गोइंग टू द क्लाइंट, योर इंटेंट शुड बी वेरी क्लियर कि मैं जब बात करूंगा उसके भले के लिए कर। सही। अगर हो सके तो आपको इंटेंट लिख के जाना चाहिए कि मैं Intent अगर लिख के निरंजन, जाना, यस यस, लिखा हुआ इंटेंट बहुत पावर रहता है उसमें। एक तो सक्सेस होना है, बुलंदी पे पहुंचना है, और फिर बुलंदी पे ठहरना भी है। स्टेइंग देयर इज इम्पोर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए कुछ करना नहीं, जो कर रहे हो, जो राइट थिंग कर रहे हो, उसको रिपीट करना है। वन मोर कॉल, अगेन वन मोर कॉल, राइट। तो यही एक रास्ता है। उस डे प्लान में गैप कहाँ है? पहले जो आप बोला ना सर कि लोग लिखते नहीं हैं, जो आज जो करना है, आप इसके बारे में बहुत एक दो बुक भी लिखे हैं, और आपका वन मोर कॉल में भी आप अंदर गए तो प्रोस्पेक्टिंग के बारे। तो फर्स्ट पॉइंट इज लिखना ज़रूरी है। नहीं, डिस्ट्रक्शन आता कहाँ से? फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। Correct. वो विंडो हमें जितनी जल्दी है क्लोज करनी पड़ेगी। देखो, एक ही रास्ता है, वो कोई अंदर से बाहर से कोई रास्ता नहीं आएगा। सो ड्यूरिंग द डे कौन सी चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है वो भी मुझे लिखनी पड़ेगी। अच्छा। जब भी कोई आपका सीक्रेटली फोटो निकाल दे तो आप किसके साथ होने चाहिए? या तो आप आपके एजेंट के साथ या आपके क्लाइंट के साथ। ओके। अगर आपका ज़्यादातर टाइम कलीग्स के साथ जा रहा है तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं होगे। In a one more call, you spoke about one of the important aspect of any salesman, whether insurance or कुछ भी बेच रहा है सर, और किराना शॉप में भी बेचेगा, उतना कंपटीशन है कि, या कोई भी सेल्समैन को वन मोर कॉल में आप जो बात करें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी सेल्सिंग इज प्रोस्पेक्टिंग से, कि मेरे को आज जो है द टफेस्ट पार्ट ऑफ एनी सेल्समैन इज प्रोस्पेक्टिंग। अगर आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट है तो आपका ये अलग है। प्रोस्पेक्टिंग इज ए लाइफ लाइन, राइट। ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डेटा आप देखिए, हर 3 साल में 10 लाख लोग आ रहे हैं, 10 लाख लोग जा रहे हैं, राइट। करेक्ट। अब जो लोग आते हैं, एक तो उसका एक नेचुरल मार्केट होता है। सो नेचुरल मार्केट बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। आपके घर को आग लग गया, यू आर ए फाइनेंशियल एडवाइजर, और आपके घर को आग लग गया, और आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है, कोई एक चीज आप उठा के निकल सकते हो। कितना टाइम है? 2 सेकेंड। 2 सेकंड, कोई एक चीज आप पिक कर सकते हो। तो वो एमडीआरटी एजेंट ने क्या बोला था उस टाइम पे कि मैं मेरा प्रोस्पेक्टिंग डायरी लेके निकल जाऊंगा। अगर मेरे पास मेरा प्रोस्पेक्टिंग डायरी है तो मैं वो एम्पायर वापस खड़ा कर सकता। बुक जो है गिरीश भाई ने लिखा है, ये बहुत अमेज़ॉन पे भी है। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स ए सेल्स मैन कैन रीड। इसमें जो फिलिप कोटलर वो सब ज्ञान नहीं रहेगा, आपको खाली इतना रहेगा कि आपको क्या करना चाहिए सेल्स करने के लिए। यस सर। तो रेफरल इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। यस। एंड पीपल नहीं, एनी सेल्स Correct. आफ्टर क्लोजिंग अगर आप उससे 2 रेफरेंस नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट ए गुड सेल्समैन। इंडिया में हम देखते हैं कि इट्स मिसिंग। सो कॉमन क्या मेजर मिस्टेक है कि प्रोस्पेक्टिंग का फोकस ही नहीं रह रहा है। अच्छा, द फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो प्रोस्पेक्टिंग ओनली। उसका फोकस नहीं है, उसका प्रोस्पेक्टिंग डायरी नहीं है। इन अर्ली डेज वी लर्न फ्रॉम द प्रूडेंशियल कि Agency मेरा plan माई हाँ। मार्केट 100 होना चाहिए, राइट। एजेंसी प्लान। आज कहीं भी देखो आप नहीं है। आज तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैनेजमेंट भी प्रोस्पेक्टिंग पे बात नहीं कर रहा है। माई मार्केट का एक
डायरी हुआ करता था, आपको वहीं बैठ के 25 नाम लिखने हैं, राइट? इट्स मिसिंग. Absolutely. Getting back to basics. अरे इवन मैं बताऊं कि दी इंडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है. होता है. इंडक्शन इज मिसिंग. तो people are not getting trained. बिल्कुल नहीं. अब मैनेजमेंट को लगता है कि एक्सपेंस है, अब उनको लगता नहीं कि अनट्रेन्ड लोगों को लेके हम कौन से टारगेट कर पाएंगे. सो प्रोस्पेक्टिंग, इसमें मास प्रोस्पेक्टिंग के कुछ इवेंट्स लिखे हैं. FOS ऑन व्हील्स. Okay. What is that? sir? FOS on wheels means Feet on FOS means feet on street. Feet on street, yes. राइट. तो ये एक प्रोजेक्ट हमने किया था कि हाउ टू टॉक डायरेक्टली ऑन द इंश्योरेंस विद द स्ट्रेंजर. Okay. एक नए आदमी के साथ सीधा इंश्योरेंस पे कैसे बात कर पाएंगे. तो ये फियर निकालने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट किया था. सो आई थिंक इट इज़ इन 2006 के आसपास. वी बुक द टिकट ऑफ शताब्दी ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे, बॉम्बे टू अहमदाबाद. Okay. तो जो रिजर्वेशन का चार्ट होता था 700 पीपल्स, वी मैनेज टू गेट ए चार्ट, राइट. सो चार्ट में क्या होता है, आपका सीट नंबर है, नाम है और आपका एज है. एंड वी प्रिपेयर द एनवेलप कोटेशन फॉर 700 पीपल्स. Wow. So आपका जो शताब्दी एक्सप्रेस जो है उसमें आपको कोई मालूम नहीं था. कोई मालूम नहीं था. आपको खाली नाम मालूम था, एज नाम मालूम था, इतना पता था कि अपर क्लास लोग ट्रैवल कर रहे हैं. हाँ. अब उनका अपॉइंटमेंट लेना, उनकी ऑफिस जाना, उनके घर, वो टाइम नहीं दे रहे हैं. वो शताब्दी में बैठे हैं, 6 घंटा फ्री है. उसकी सीट पे जाके उसके सीट नंबर पे उसका नाम वाला कवर देने में वो आई थिंक हमको टाइम देंगे. एंड वी गॉट ह्यूज सक्सेस. Wow. Right. तो you सो इट्स ए वन एग्जांपल ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग. mass prospecting. बहुत सारे मास प्रोस्पेक्टिंग के इवेंट के बारे में बुक में लिखा है. सही. मैं भी पढ़ा. अगर आप सेल्स क्लोज से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान दोगे तब आप लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में सर्वाइव होंगे. आई थिंक क्लोजिंग इज एन आर्ट. सो क्लोजिंग में थोड़ा साइकोलॉजी भी यूज होता है. ऑब्जेक्शन जो आते objection हैं उसको हैंडलिंग करने के लिए आपको ओवर ए पीरियड सीखना पड़ेगा. ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन. ज़्यादातर सेल्समैन पहले या दूसरे ऑब्जेक्शन में फ्लैट हो जाते एंड गिव अप कर देते हैं. एक्चुअली उसको वो देखना चाहिए कि वो खुद अगर कुछ चीज़ परचेज करने जा रहा है, वो भी तो 2-3 ऑब्जेक्शन करता है. वो तो है. हम खुद अगर कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, हम भी 3-4 चीज़ें पूछ रहे हैं. सो आपको ऑब्जेक्शन का मैथोडोलॉजी समझना पड़ेगा एंड हाउ टू हैंडल इट. करेक्ट. सो ये बुक में बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में लिखी हैं. प्रिपरेशन, सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग. जितनी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है क्लाइंट की, उसकी साइकोलॉजी, उसका फैमिली, उसका पैटर्न, उसका बिलीफ, जितना भी, एंड उसके बाद लाइव कन्वर्जेशन में वो क्या क्वेश्चन करता है, राइट. करेक्ट. तो उसको आप बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करोगे. बाय ए टाइम, राइट, गेट द आंसर एंड गिव हिम टू इन द सेकंड मीटिंग. सो ये 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉल पे क्या होता है. सो आई बिलीव इन दी, अगर आप हमारे पास कम इंफॉर्मेशन है, सपोज ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में नहीं मिली, तो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए. आई बिलीव कि द आस्कर इज अ विनर. एब्सोल्युटली. जो सवाल पूछता है वो जीतता है एंड में. सेलर्स मार्केट का टाइम गया. इट्स अ बायर्स मार्केट. कस्टमर के पास आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आज के दिन में. अगर आप उसके लाइफ गोल के साथ अटैच नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा वो. ज़्यादातर एजेंट क्या होता है, कॉल पे ग्रीडी बन जाते हैं. अच्छा. राइट. तो वो तो बिल्कुल वहाँ से दूर रहना है. एंड अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है उसके क्वेश्चंस का, तो बाय टाइम. बाय टाइम. ओके. यस. फाइंड आउट ए सॉल्यूशन, प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन, देन come back, go back again. One is that what I am telling you is I have written it. Keep this as maturity is what I told you now. After 30 years also it holds right. So that you are building a trust with him. उस टाइम तो हम कॉल पे बोलते थे कि सर ये जो पेपर है ना, आप पॉलिसी के साथ रखना. पॉलिसी में जो भी लिखा है ठीक है, मेरे पेपर में जो लिखा है वो मेरी ऑफिस देगी आपको. अच्छा. वो ऐसा हम उस टाइम पे बोलते थे. मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. अच्छा. मैं जो काम कर रहा हूँ, जो प्लेटफॉर्म मैंने सिलेक्ट किया है, वो मैं सही कर रहा हूँ. पैसा कितना मिलेगा, क्या सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को अपने सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने कलीग्स को देखा है कि फिनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या क्या हो रहा है. जो बैड इफेक्ट्स आते हैं, उसके बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, शादियों में प्रॉब्लम आ रहा है,
कुछ इवेंट में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मेरा एक बिलीफ तो था पहले से ही, ये अंदर आ गया था कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। अब अगर वो नहीं समझ रहा है तो आई हैव टू फाइंड आउट द वेज कि मैं उसे कैसे समझाऊं। करेक्ट। इतनी लाइन छोड़ के, लॉयर का छोड़ा, जॉब छोड़ा, बैंकिंग छोड़ा, मुझे लगता है कि किसी की फैमिली में अगर मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं तो दिस इज दी लाइन जहां मैं उसके लाइफ गोल के बारे में, लाइफ गोल तो बाद में वर्ड्स आया, पर पहले मुझे लगा था कि जब मैं रिटायर हो जाऊं और उसके घर से बाहर से निकलूं तो मुझे बुला के खाना खिलाना चाहिए। सुपर। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बहुत। वो हमने हमारे फैमिलीज में भी देखा हाँ, वो है, तो एक गुजराती फैमिली है। सब जगह देखा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट पे बिलीव था। आप कितने सारे नोज मिले होंगे, तो 27,000 कस्टमर्स यू एक्वायर्ड। आई थिंक 3x नोज मिले होंगे। 27,000 क्लाइंट है, इनटू 3 गिनो, नोज मिले होंगे। तो ज़्यादा आप लाइव एंड दी यू कैन लर्न फ्रॉम नोज ओनली। एक होता है कि मेरे पास बहुत पॉलिसी है, दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। सेकंड, बहुत सारे एजेंट मेरे पीछे हैं। द थर्ड वन इज मैं सीए को पूछ के बताऊंगा, पापा को पूछ के बताऊंगा, ब्रदर को पूछ के बनाऊंगा। एंड द फोर्थ ब्रह्मास्त्र है क्लाइंट के पास, वो कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है अभी। तो आई लर्न कि 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सो इन ड्यूरिंग द कॉल अगर किसी भी एजेंट को इतना पता चल जाता है कि सामने वाले के पास 4 ऑब्जेक्शन है, सो इन ऑन एवरी ऑब्जेक्शन आपको अंदर से हैप्पी होना है, दिखाना नहीं है, आपको हैप्पी होना है कि अभी उसके पास 3 बच्चे हैं, अभी उसके पास 2 बच्चे हैं, और एक लास्ट बताए तो यू हैव टू डांस के भी अभी एक ही बचा है। अगर ऐसा फीलिंग आना शुरू हो गया है ना, तो आप कभी भी तो सेल्स में बोर नहीं होंगे। तो डांस करना है, पैसा नहीं है तो डांस करके चले जाना है। दिखाना नहीं है, अंदर से डांस अंदर से तो है। तभी आप सक्सेस होगे। देखो, द इंडस्ट्री इज फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम ऑफ परसिस्टेंसी। करेक्ट। राइट। इफ यू डोंट सेल राइट, वो लाइफ गोल तक जाता नहीं है, वो बीच में फिर डिसेट 2-3 सबका नुकसान है। क्लाइंट का सबसे बड़ा नुकसान है, फिनेंशियल एडवाइजर का नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है। So these people will break the trust of the good salesman also. ट्रस्ट अकेला नहीं, उसके लाइफ का गोल भी आपने ब्रेक कर दिया है। डायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली यू आर डैमेजिंग। करेक्ट। उसने जिस पर्पज से आपको पैसा दिया है, इन्वेस्ट करने को दिया है, वो भी खत्म हो गया। सो वन ऑफ द माई क्लाइंट, मैंने उसको प्रेजेंटेशन दिया कि भी आपको थोड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए। ने बोला नहीं, ऊपर से भगवान भी आ जाएगा ना, मैं इंश्योरेंस नहीं लूँगा। वो क्लोज फ्रेंड था, तो मैंने बोला देख भैया, इंश्योरेंस बेचने भगवान तो आएगा नहीं, वो तो है। समथिंग वेंट रॉन्ग, तो मैं ही हूँगा तुम्हारा जो भी मृत्यु के बाद जो होता है, फोटो के साथ मैं बैठा हूँगा। तो है। राइट। लोग मुझे एज ए इंश्योरेंस एजेंट देखेंगे, आके मुझे पूछेंगे इसका लिया था, मैं बोलूँगा मैंने बहुत समझाया, उसने नहीं लिया, तेरा ऐसा ना हो तू ले ले। तो ऐसे करके हम बात भी करते थे। वो तो है। पर एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि मैंने उसको दिया क्योंकि मेरा फ्रेंड था, वो नहीं समझ रहा था, मैंने दिया। अब हुआ क्या कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और क्लेम के टाइम पे जब मैं मिलने गया तो वो अच्छा, उसकी सिस्टर के वहाँ रह रही थी, उसकी वाइफ, मेरे फ्रेंड की वाइफ उसके सिस्टर के वहाँ रह रही थी। बहुत अच्छा बंगलो था, वेल प्लान लाइफ, या अच्छा था। मैं वहाँ गया तो मैंने बोला कि मुझे मिलना है, मैं उनका फ्रेंड का फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और उसके क्लेम पेपर पे कुछ साइन साइन लेना है, वो अर्ली LIC के डेज की बात। तो मैं गया, मिलने गया, उनके 2 बच्चे थे। तो मैंने बोला कि मैडम साइन कर दीजिए। उन्होंने मुझे बोला कि ये पैसा कितने दिनों में मिलेगा। तो मुझे लगा कि वो जो उसका लाइफ था उससे तो बेटर लाइफ जी रही है अभी, छोटा सा अमाउंट है, 3-3.5 लाख है। क्यूरियोसिटी के लिए मैंने उसको पूछा कि आई थिंक आप आपके सिस्टर के यहाँ तो बहुत अच्छे से सर्वाइव हो रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, सिर्फ मुझे इतना जानना है कि आपने क्वेश्चन क्यों पूछा। और उस टाइम पे उसने जो मुझे बात बोली ना, आज तक मेरे दिमाग से जा नहीं रही। उसने मुझे बोला कि हमने लोन पे एक फ्लैट लिया है, 1.5 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है, ये अगर पेमेंट आ जाए तो मैं 1.5 लाख पे कर दूं और हम लोग हमारे फ्लैट में रहने चले जाए। तो मैंने बोला आपकी सिस्टर को आपको अच्छे से नहीं, मेरी सिस्टर बहुत अच्छी हैं, हम साथ अच्छा रह रहे हैं।
डाइनिंग टेबल पे जब हम खाना खाने बैठते हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं मेरे सिस्टर के घर पे खाना जो रह रही हूँ, मेरे बच्चे पूछते हैं कि अपने घर में कब जाएंगे। सुपर। तो मुझे लगता है कि अगर ये भैया जो ये अगर जल्दी पैसा आ जाता है तो मेरा 1.5 लाख बाकी, मैं दे दूँ, मेरा फ्लैट का पोजीशन आ जाए, हम लोग वहाँ चले जाए। तो वो मेरे दिमाग से जा नहीं रहा, अभी भी नहीं जा रहा। अभी भी जब किसी कोई ऐसा फैमिली देखता हूँ और बात करने जाता हूँ तो मेरे पिक्चर दिमाग में आता है। तो ये प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस है। सही है। उसने फ्लैट लिया, फिर बच्चों को पढ़ाया, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अब एक तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेजेडी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट को आईआरआर के साथ कंपेयर करके बेच रहे हैं, और ये जितने भी बैंकर लोग मैनेजमेंट में सीईओ में आए उन्होंने सीधा आईआरआर पे उसको ये कर दिया। फंड वैल्यू तो दिखाओ। हाँ, प्रोडक्ट का जो कोर है ना वो मिसिंग है। द सोल ऑफ प्रोडक्ट। यस, वो मिसिंग है। तो इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक। एंड सेकंड थिंग, मेजोरिटी पीपल सेल्स जो उनको प्रोडक्ट प्रमोशन किया जा रहा है वो क्लाइंट के एंगल से देख नहीं रहे। सही है। जब क्लाइंट भी बाय कर रहा है, होता क्लाइंट भी वो पजल गेम जैसा है उनका। जब आप पूरा फाइनेंशियल पेपर्स निकालोगे और पूछोगे कि ये प्रोडक्ट क्यों लिया था, उसको पता नहीं है। तो अरे मैंने ज्यादातर देखा है कि एलआईसी की पॉलिसी के कवर भी खोले नहीं है आज तक। तो ये दोनों तरफ से मिस है। सो उसको पहले ही समझना चाहिए, उसको सारे ऑप्शन देखने चाहिए, आने के बाद डेफिनेटली उसको एक बार पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ता है तो उसको एजेंट को कॉल करके बुला के बोलना चाहिए कि एक्सप्लेन मी क्या लिखा है। एक तो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब एक इंश्योरेंस अकेला एक सा प्रोडक्ट है कि एक आज एजेंट एक ही कंपनी का काम कर सकता है। तो अब म्यूचुअल फंड में आप 40 कंपनी का काम कर सकते हो। आप समझ रहे हो? अभी बदलाव आ रहा है ना। तो ये बदलाव अभी भी बहुत लेट है, उनको जल्दी लाना चाहिए, राइट? क्योंकि ये प्रोडक्ट उसके सुटेबल है कि नहीं कस्टमर को। अब वो मेरे पास एक ही लाइसेंस है, मैं वही प्रोडक्ट बार बार उससे बात करूंगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। पर लाइफ गोल आइडेंटिफाई किए बिना, प्रोडक्ट का मैचिंग का परसेंटेज किए बिना अगर आप सेल करोगे तो कहीं ना कहीं मिसफायर हो। पहले जो सेगमेंट है लाइफ इंश्योरेंस में या किसी को, और इंडिया के सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है नारी शक्ति, women power, which is housewives. Give me one example where a housewife has turned into a professional. अब तो हम बहुत प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, टॉप सुपर वुमन का फोटो लगाते हैं, फिर टॉप 5 इंश्योरेंस के लगाते हैं। बट देर इज ए गैप। सो जब उसका स्टडी चलता है, इनिशियली एवरी फीमेल जब कॉलेज के दरमियान होती है उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, राइट? अब पढ़ाई खत्म होते होते ऑल ऑफ सडन सी फॉलो इन द मैरिज सिस्टम। अब मैरिज सिस्टम में आते ही एक दूसरे फैमिली में जाना है, दूसरे फैमिली में सी हैव टू मैनेज मोर देन 50-60 न्यू रिलेशनशिप। 1-2 साल वो सेटल होती है, सेटल होने में ऑल ऑफ सडन वो किड्स आता है, वो फिर किड्स ग्रो करने में सेटल हो जाती है। एंड जब किड्स स्टार्ट गोइंग टू स्कूल तब 3-4 घंटा उसके पास एकदम वैकेट हो जाता है। अब वो पढ़ाई से शादी और शादी से किड्स, ये जो 25 to 35 वाला जो पीरियड है, 34-35 वाला पीरियड, शी इज टू मच बिजी। क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल सिचुएशन अलग है। एक तो डिफरेंट वर्ल्ड में आना है, आने के बाद किड्स, और फिर किड्स स्कूल चला गया। अब पूरा फैमिली, हस्बैंड जॉब पे गया है, बिजनेस पे गया है, किड्स स्कूल में गया है, 3-4 घंटा अकेली बैठती है। एंड वहाँ उसको लगता है कि तब वो सोचना शुरू करती है कि मैं तो क्या बनने वाली थी, क्या ड्रीम थे, क्या हो गया। देन शी स्टार्ट कंप्लेनिंग। सो एवरी हस्बैंड फेस सेम, राइट? अब उस टाइम पे उसको कोई जॉब करना है, उसको कुछ करना है लाइफ में, उसको आइडेंटिटी बनानी है, पर सारी चीज़ों में कंपल्सन बहुत होते हैं। एक एडवाइजरी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें क्या होता है कि वो फैमिली भी मैनेज कर सकती है, किड्स भी मैनेज कर सकती है, बिजनेस भी कर सकती है, ग्लैमर भी है, पैसा भी है, करेक्ट, राइट? और उसको एक्टिविटी मिलता है। तो ये हाउसवाइफ इसी वजह से ज़्यादातर इंश्योरेंस में सक्सेस है। टर्म प्लान के बारे में आपका व्हाट इज़ योर व्यू? एंड अभी भी पेनिट्रेशन कम है कि IRDA is promoting in why term insurance is important, insurance is important, advertisements, a lot of companies are doing. There's a lot of gaps even today. So what is your view on term insurance? सो टर्म के बारे में मैं बताता हूँ लोगों से कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट
अनिश्चितताओं का खेल है, पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, राइट। लाइफ भी ऐसा है। करेक्ट। सो और अभी हमने एक बेस लाइन भी डिसाइड, काफ़ी लोग पूछते हैं कितना टर्म होना चाहिए, कितना टर्म होना चाहिए, तो 10x इज़ ए रूल। आदमी को उसके एनुअल इनकम का 10 टाइम्स टर्म होना चाहिए। टर्म इज मस्ट। इंश्योरेंस एज ए कॉन्सेप्ट, अगर उसको सबसे पहला कुछ करना है तो ही शुड स्टार्ट विद द टर्म। इंडिया में इंश्योरेंस फॉर ऑल जो स्लोगन दिया गया है, और उसमें जितनी चीज़ें भी बन रही हैं, बीमा सुगम, सतर्क, बीमा वाहक, जो जितनी चीज़ें बन रही हैं, बीमा विस्तार, सो ये उसका अवेयरनेस भी बहुत क्रिएट हो रहा है। और कोविड के बाद तो ऑल ऑफ सडन द टर्म मार्केट इज, पर टर्म में भी अभी बहुत इनोवेशन हो सकता है। कैन यू थ्रो सम लाइट टू मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट? मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदुस्तान एक अकेला कंट्री है जहाँ फ्री में मिलता है। अच्छा। इन यूएस तो क्या होता है कि आपको एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ती है, वो आपका CPA $25,000 तो पहले फी लेगा। हिंदुस्तान में वुमेन के लिए, सो एनी फीमेल जब भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो एक पॉलिसी उसको MWP में रजिस्टर करना चाहिए, बिकॉज इफ समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस इज अनटचेबल प्रॉपर्टी। करेक्ट। यानी बाय लॉ ये प्रोविजन इंडिया में है, लेकिन आज भी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी बिक रही है, हार्डली 1%। एक एडेंडम साइन करना है, उतना ही है। हाँ, बस जस्ट MWP होना चाहिए। The second plan which I am talking about is a health insurance. So you have also touched in one of the recent meetings I have seen you is that health insurance में भी बहुत सारे innovations हुए हैं last 5 years से. So why health insurance is along with the term is very important. So someone have to come up with the combo plan, term plus health, right? क्योंकि हेल्थ और कोविड के बाद बहुत अवेयरनेस भी बढ़ा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज भी धीरे धीरे आ रही हैं, ग्लोबल प्रोडक्ट्स। हाँ, सो स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनियां भी आ रही हैं, पर सेम मार्केट में जो चीज चल रही है हेल्थ पे अभी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। करेक्ट। राइट। सो जब तक आप कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा और हेल्थ के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि क्लेम प्रोसेस आज भी हिंदुस्तान में इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। क्योंकि क्या होता है, वो 17-18 पेज का कंडीशन रहता है। अब आई डोंट थिंक कि कोई कस्टमर उसको पढ़ पाएगा, एजेंट पढ़ पाएगा, इवन कंपनी पढ़ पाएगी, राइट। सो मेक इट सिंपल। जब तक हेल्थ प्लान को आप सिंपल नहीं बनाओगे, देखो बाहर क्या है, फॉरेन में आपको क्लेम नहीं करना है, फार्मेसी विल क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, राइट। अब हिंदुस्तान में जब देखो हेल्थ में क्या है, क्लेम इज द प्रोडक्ट, करेक्ट, राइट। सो हेल्थ इज ऑल्सो, हेल्थ तो एकदम टर्म से पहले भी आना चाहिए। नहीं, लुक एट द मेडिकल इन्फ्लेशन, हर 3 साल में दुगना हो रहा है। आई थिंक 20% के आसपास, 25% के आसपास मेडिकल इन्फ्लेशन है। हाँ। और अभी तो आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है, पर आप नॉर्मल चेकअप करने भी जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है सब बहुत सारे। सो आई डोंट थिंक 5 लाख के कुछ होगा। What should they look at if they are taking a health plan? 3 points. देखो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो एडिक्वेट हेल्थ होना चाहिए, राइट। सेकंड थिंग, हेल्थ के प्रीमियम जो इंक्रीज हो रहे हैं उसका भी प्रोविजन होना चाहिए। सो आई विल एडवाइज समवन कि आप एक हेल्थ प्लान ले लो, साथ में एक और SIP लो, और वो SIP आप फ्यूचर प्रीमियम के लो, क्योंकि 15% SIP भी अगर मार्केट में बढ़ेगी, तुम्हारा प्रीमियम भी 15%। सो ये जो that's a part of a financial planning. तो आप कभी मिस नहीं कर पाओ। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, आपको ये भी देखना है कि द अल्टीमेट गोल हर आदमी का क्या होता है, इट्स ए रिटायरमेंट। सो अगर समथिंग वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग दैट इन हेल्थ, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ड्रेन हो जाएगा, करेक्ट, राइट। तो और ये नहीं होगा, अगर आपका 3 लाख 5 लाख का भी हेल्थ का कॉर्पस निकल गया, तो वो जो इम्पैक्ट करेगा आपके रिटायरमेंट पे इज अ बिग गैप। एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू लुक एट, एक तो आपको एक्सपेंसेस देखने हैं हेल्थ के, उसका इन्फ्लेशन भी देखना है, उसका फ्यूचर इंक्रीज प्रीमियम का प्लानिंग भी देखना है, एंड वो रिटायरमेंट पे इम्पैक्ट नहीं करे वो भी आपको देख। तो लास्ट कमिंग टू थर्ड एंड द one book you have written, one more innings. This is one of the best books I've read, Girish bhai, कि this is the problem, this is the concern of the future, which is retirement. आप हमारा जब कॉन्वर्जेशन हो रहा था, एक स्पिरिचुअल गुरु क्या सिखाता है आप बोले थे, तो वो एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ रिटायरमेंट, व्हाट शुड पीपल डू टू डू फॉर देयर रिटायरमेंट, एंड व्हाट शुड
be the future of retirement. But the biggest attraction of the US and UK is the social security. Okay. वहाँ क्या होता है, इफ़ यू पे 100 रुपीज़ टैक्स, 40 रुपीज़ आपके सोशल सिक्योरिटी में जाता है, 60 रुपीज़ गवर्नमेंट में जाता है. हिंदुस्तान में 100 रुपीज़ टैक्स पे किया, पूरा गवर्नमेंट ही उसको यूज़ कर रही. सो सोशल सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट एडवांटेज पीपल Have in the Western world. एंड Yes. ज़्यादातर पटेल्स जो हमारे माइग्रेट हुए वो उसकी वजह से हुए. आज टुडे वी आर टॉकिंग इन द इंडिया, आज भी रिटायरमेंट पे बहुत काम नहीं हुआ है. सो इमीडिएट आफ्टर द IRDA इन 2004 गवर्नमेंट फॉर्म ए बॉडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, PFRD इन 2004. जस्ट दे लॉन्च वन NPS. उसका अभी कुछ एक्टिविटी हो रहा है, बाकी तो उसमें टैक्सेशन के अलावा कुछ नहीं था. सो आज भी PFRDA बॉडी ने बहुत इतना काम नहीं किया. आज भी कोई स्टैंड एलोन पेंशन कंपनी हिंदुस्तान में है नहीं. वर्ल्ड वाइड आप देखो, पेंशन कंपनी इज बिगर देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. Absolutely. Yeah. तो हिंदुस्तान में अभी पेंशन पे काम ही नहीं हुआ है. इवन इन दिस सोसाइटी इफ यू ऑब्जर्व, दो तरह के लोग हैं. इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इन टू पार्ट, वन इज ऑलरेडी रिटायर्ड और दूसरे जो हम जैसे लोग हैं जो रिटायर होने वाले हैं. Correct. राइट. अब जो लोग रिटायर हैं उसकी लाइफ को आप आपकी सोसाइटी में ऑब्जर्व करोगे, वो 3 जगह पे है. एक को हम बोलते हैं मैन एट वर्क. 65 एज पे भी उसको मंथली एक्सपेंस के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है. अब उसका हेल्थ परमिट करता है नहीं करता है, इट्स ए डिफरेंट सब्जेक्ट, पर उसको चिंता रहती है कि ये महीना कैसे निकालूंगा आफ्टर 60 to 65. Absolutely. एक वर्ग ऐसा है. दूसरा एक वर्ग है जिन्होंने थोड़ा बहुत प्लानिंग किया है. आई थिंक उन्होंने बैंक में FD रखी है, पोस्ट में पैसा रखा है, कुछ रेंटल इनकम है, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 2004 से पहले वाले थे उनको पेंशन आ रहा है. अभी तो गवर्नमेंट ने भी वो पेंशन बंद किया है. FD रखी है, उनका भी बड़ा प्रॉब्लम है, 12% से 5.5% पे आ गए हैं. रेंटल भी कोविड में हमने देखा कितना रेंटल लोगों ने कम किया, वो किया. सो द प्रॉपर रिटायरमेंट प्लानिंग उस पर हिंदुस्तान में काम. अब बहुत सारी कंपनियां उस पर पेंशन प्लान बना रही है मिसमैच करके, पर एक्चुअल जो PFRDA को जिस पे काम करना चाहिए, आई थिंक गवर्नमेंट को उस पर बड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बिगेस्ट सब्जेक्ट. सेकंड थिंग है, किसी भी फैमिली में मैंने आज तक देखा नहीं कि वो बैठ के रिटायरमेंट पे बात कर रहे हैं. वो सेम स्टोरी है कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोरफादर्स. हमारे दादा ने, पप्पा ने, किसी ने रिटायरमेंट पे बात नहीं किया और प्लान नहीं किया. नॉट इन अवर एजुकेशन सिस्टम, नॉट अ सिंगल चैप्टर. मैं 18 साल पढ़ाई किया, MCOM किया, BCOM किया, LLB किया, एक चैप्टर नहीं था रिटायरमेंट में. Correct. अब US UK में जाओ, 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स है. हम तो सिर्फ फिनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं. वहां तो शादी कौन सी एज में होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट. फर्स्ट किड्स कब होना चाहिए, वो भी पार्ट ऑफ रिटायरमेंट. सो 25 साल में आपकी शादी होनी चाहिए. फर्स्ट साल में अगर बच्चा हो जाता है, 26वें साल में जब आप 50 के होते हो तो बच्चे की शादी हो जाती है. अब यहाँ तो 60 साल हो गए हैं, मैं मेरी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, मैं रिटायर कहाँ होऊंगा. देयर इज अगर फाइनेंशियली हो गया तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब भी है मेरे पे. Correct. सो रिटायरमेंट पे. और द थर्ड, वी आर इन्फ्लुएंस बाय दी जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, NGOs, क्लब्स होते हैं. कभी किसी ने रिटायरमेंट पे होर्डिंग लगाया? नहीं. कोई उसकी अवेयरनेस पे बात नहीं कर रहा है. एंड सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वी आर इन्फ्लुएंस बाय दी अवर रिलीजियस लीडर्स. जितने भी हमारे धर्म गुरु धर्म्स हैं, उनसे हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं. हमको श्रद्धा रहती है, ट्रस्ट रहता है. उन्होंने भी कभी रिटायरमेंट पे बात नहीं की. वो स्वर्ग मोक्ष सब बात करते हैं, पर वो तो मेरे को मृत्यु के बाद मिलेगा ना. मेरे को स्वर्ग 60 से 80 में चाहिए. मैं 60 में रिटायर होता हूँ, 80 तक जीता हूँ. अभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है. और इसलिए नहीं बढ़ रही कि हम लोग हेल्दी बन गए हैं, इसलिए बढ़ रही कि एडवांस मेडिसिन आ गई है. वो मरने नहीं देंगे. वो हार्ट निकालेंगे, शैम्पू करेंगे, वापस रखेंगे, 10 लाख का बिल देंगे. हमको 95 100 साल तक, 100 साल से ऊपर भी हम लोग जी गए ना, तो सरप्राइज मत होना. तो उन्होंने भी क्या बोल रहे हैं कि आप भलाई करो, वो करो, वो करो, आपको स्वर्ग मिलेगा, वो जो भी मिलेगा. राइट. वो तो मृत्यु के बाद मिलेगा ना. वो भी मुझे चाहिए, लेकिन मेरे को 60 से 80 में रिटायरमेंट. तो लोगों को क्या करना चाहिए कि ये रिटायरमेंट के लिए? देखो, एक बार थॉट प्रोसेस तो शुरू करें कि रिटायरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ गोल ऑफ माई लाइफ. इट शुड बी ट्रीटेड एज सब लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे जवान हुए, पढ़ाई की, जॉब किया, बिजनेस किया, फिर शादी किया, फिर बच्चे का
पढ़ाई किया, फिर बच्चे का शादी किया, आप समझ रहे हो। अब तब तक तो आप 55 हो गए, ऑल ऑफ सडन पता चलता है कि रिटायरमेंट को कुछ किया नहीं है। करेक्ट। आप समझ रहे हो? तो सोच, ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में रिटायरमेंट लाइफ वो सोशल सपोर्ट या चैरिटी या वृद्धाश्रम से जी रहे हैं सर। काफ़ी फिल्मों में भी आ गया, तो है। ये अवतार देखो, Correct, बागबान correct. देखो, राइट। ज़्यादातर लोग डिपेंड हो जाते हैं। अब जब उसका वर्किंग स्पान चल रहा है, ही इज अ लायन। ओ यस यस, अब 58 पे रिटायर हुआ ना, 3 साल में बूढ़ा हो जाता है, करेक्ट। उसका पूरा बॉडी बदल जाता है, क्योंकि फिनेंशियल खत्म हो जाता है। एंड सारे आज भी जितने भी, अच्छा सब लोग प्लान कर रहे हैं, पर सारे पार्किंग प्लेस हैं। आई एम डिपेंडेड। करेक्ट। अगर मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है तो मैं मार्केट पे डिपेंड हूँ, स्टॉक में हूँ तो मैं डिपेंड हूँ, एफडी में हूँ तो एफडी के रेट पे डिपेंड हूँ, राइट। मैंने प्रॉपर्टी में डाला है तो उस टाइम पे रेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं डिपेंड हूँ। और अगर मैंने बच्चों को दे दिया, मैं बच्चे पे डिपेंड हूँ, हर पहली तारीख को मुझे देखना है वो मेरे को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो जो सोशल सिक्योरिटी है ना, मेरे अकाउंट में हर एक तारीख को गारंटेड मंथली कैश फ्लो आना चाहिए अप टू द लास्ट ब्रीथ। और ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ गोल है, एंड इट्स टोटली मिसिंग इन दिस कंट्री। उस पर किसी ने बात नहीं किया है। सुपर। अब तो रिटायरमेंट इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ। सो उसको लोग सेकंड इनिंग बोलते हैं, मुझे थोड़ा सेकंड इनिंग टॉक्सिक लगता है, इसलिए मैंने लिखा है वन मोर इनिंग। सुपर सुपर सुपर। सो बहुत काम हो सकता है रिटायरमेंट में। तो और इसके I think इसके ऊपर सबको करना आई थिंक इसके ऊपर वी कैन हैव वन सेशन, फुल सेशन विथ यू, Sure, बिकॉज sure. व्हेन आई एम Any- टॉकिंग any- anytime. व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, वन जो है आपका रिटायरमेंट के ऊपर, फर्स्ट थिंग यू सेड इज लोगों को सोचना चाहिए। सेकंड जो सोचना शुरू करना चाहिए। शुरू अगर करना वो करेंगे तभी तो बात होगा। सेकंड जो है गवर्नमेंट को भी बहुत सारा काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत करना चाहिए। गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट भी इतने सालों में अभी आई डोंट थिंक उसका फोकस बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ पर हमने रिसेंटली अभी सुना है कि दी वन मोर सेक्टर कमिंग इन द इंडियन इकोनॉमी इज द कोऑपरेटिव सेक्टर। सो कोऑपरेटिव के लिए मिनिस्ट्री भी बना। करेक्ट। आज ही आनंद कोऑपरेटिव का यूनिवर्सिटी बन रहा है, आज उसका खातपुरत है। सो आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज कमिंग टू आनंद। Okay. त्रिभुवन दास कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन कर रहे हैं। सो पहली बार हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव सेक्टर का यूनिवर्सिटी बन रहा है। ओके। एंड आनंद तो वैसे ही कोऑपरेटिव का मूवमेंट का एपी सेंटर है। तो सो कोऑपरेटिव बेस पे भी इंश्योरेंस आएगा, ऐसा अभी पार्लियामेंट में उन्होंने बताया था। इवन ओला उबर जैसी कंपनियां भी कोऑपरेटिव बेस में आने वाली हैं। और मैं चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव आएगा ना, तो उनमें वो फिनेंशियल एंड ह्यूमन टच दोनों रहेगा। करेक्ट। अभी प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है, वो बहुत जल्दी 2-3 साल में उनके आइडियाज अच्छे होते हैं पर फटाफट वो प्रॉफिट पे आ जाते हैं। वो तो बैलेंस शीट की मामला है। बिफोर आई क्लोज सर, टॉप 5 लीडर्स यू गॉट इंस्पायर्ड, बट जब मैं पूछता हूँ कि टॉप 5 लीडर्स इन योर माइंड हु कैन डू अ लॉट एंड हु हैज इम्पैक्टेड यू इवन टुडे। So in child, I lot of believe in the decision making of Sardar Patel. सरदार पटेल। Yes, I inspire a lot from the confidence to solve the problem impossible, right? Absolutely, I've seen So this. ये बहुत सारी चीजें, maybe I am from the land, but सरदार the पटेल, true leader, right? the statue, unity of statue, yes. It's iconic, but Yes. उनके जो thoughts हैं Super, और ये हमको कॉन्फिडेंस देते हैं। correct. And any time the best judgment in the favor of people only, Super. any time, The leader, he's the true leader. ऐसा मैं मानता हूँ। Girish Patel as a name, आई थिंक गिरीश पटेल तो ठीक है, पर मैं how do you want to be remembered? आफ्टर माई लाइफ थ्रू माई थॉट्स आई कंटिन्यू वांट टू सेल्स लाइफ इंश्योरेंस। Or the entire podcast after this is that the next time when we meet Girish bhai, the next session and the one thing came out of the session is Girish positioning system of life goals or GPS of life goals. See you soon.